55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज तेरे नाम से है कार साजिद दो जहां, आगाज तेरे नाम से है कार साजिद दो जहां, रहमत तेरी सब पे तू सबसे बढ़ के मेहरबान। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिटीजन कैंपस में मालेगांव एजुकेशनल फोरम का जो करियर गाइडर का प्रोग्राम है उसका बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। बिला तमहीन मैं, जैसा कि हमारी अपनी रिवायत रही है, अहसन रिवायत है कि हम हमारी किसी भी तकलीफ का, किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ प्रोग्राम में लाइन से करते हैं। मैं हमारे मालेगांव एजुकेशनल फोरम के एक अहम ग्रुप मोहतरम अब्दुल अजीम फलाही साहब को मदऊ करता हूँ कि आप जो है तिलावत कलाम इलाही से आज की तकरीब का आगाज़ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطانی مخلوق کے شر سے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بیان کرنے والا ہے۔ قد افلح من زکاها، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک صاف کیا۔ وقد خاب من دساها، اور یقیناً وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے دل کے آلودگی کو دبا دیا۔ كذبت ثمود بتقواها، قوم ثمود نے اپنی بدبختی کی وجہ سے جھٹلایا۔ فكذبوه فعقروها، تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی جو تھی اس کی پونچھیں کاٹ دی۔ اذ انبعث اشقاها، جبکہ ان کا جو سب سے بدبخت شخص تھا وہ اس کے لیے کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے وقتوں کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا ناقۃ اللہ وسقیاها، نبی اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، تو ان کے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا اور پوری قوم پس کر رہ گئی۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو بھی انجام ہوا اس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ نے صحیح فرمایا جو بڑی عظمت والا ہے۔ اسی کے ذکر سے معراج بندگی ہوگی، اسی کے ذکر سے معراج بندگی ہوگی، اسی کی بات سے تکمیل آرزو کرنا، اسی کے نام ہے مختص تمام تعریفیں، اسی کے نام سے آغاز گفتگو کرنا۔ بہترین گفتگو کا آغاز تلاوت کلام الہی سے یہاں پر ہو چکا ہے۔ جیسا کہ بات واضح ہے کہ کریئر گائیڈنس کا پروگرام ہے، اس سے قبل ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا بھی انعقاد کیا، اس میں بیشتر طلبہ شریک رہے۔ آئیے آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے مالیگاؤں ایجوکیشنل فورم کے ایک اور اہم گروپ محترم زاہد یوسفی سر تشریف لائیں اور تحریک و تائید صدارت پیش کریں۔ اس بامقصد پروگرام کی صدارت کے لیے میں مختار یوسف سر کا اعلان کرتا ہوں کہ نام کا، اور سر سے اجازت چاہتا ہوں پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت۔ بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ مختار یوسف سر آپ لوگ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر کے پہلے کریئر کاؤنسلر، ایک اگر مختصر سا تعارف میں پیش کرنا چاہوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ مالیگاؤں شہر کے پہلے کریئر کاؤنسلر، جس انداز سے آپ نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا یہاں پر انعقاد کیا اور آپ لوگوں نے وہ ٹیسٹ دیا،
मैं समझता हूँ गालिबन सभी तलबा जो है उसमें पहली मरतबा इस तरह का टेस्ट उन्होंने दिया था। और ये एक अरसे से मुख्तार यूसुफ सर इस ताल्लुक से रहनुमायाना किरदार अदा कर रहे हैं। मालेगांव शहर के बेशतर तलबा और तालिबात जो आज अच्छी ऊंची पोस्ट पर पहुंचे हैं, वो आपकी रहनुमाई का एक समझ लीजिए कि एक जरिया बने आप रहनुमाई का, और वो आपकी रहनुमाई से जो है वो आला मकाम तक पहुंचे। ये बहुत अच्छी और एहसन रिवायत रही है। और इसी चीज को देखते हुए मालेगांव एजुकेशनल फोरम में जिस वक्त से आप शामिल हैं, बुनियादी अराकीन से आप शामिल हैं, और आप इसी तरह से तलबा और तालिबात की रहनुमाई और इस तरह से उनका फरीज़ा जो है वो अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे लिए ये नेमत गैर मुतरक्किबा के तौर पर हमारे साथ शामिल है, और इस उम्र के पड़ाव में बुजुर्गी किराना साली होने के बावजूद जो है आप हमेशा लगे हुए हैं, हमतन गोश है। तो हमें बहरहाल इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनके लिए दुआए खैर करना चाहिए कि इस तरह से हमारे तलबा की, हमारे नस्ल नौ की जो है वो इस तरह से रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मालेगांव एजुकेशनल के बहुत अहम जिम्मेदारों में आप शामिल होते हैं। मैं सदर, हमारे आज की इस तकरीब के सदर भी हैं, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। हमारे सदर साहब के बाएं जानिब तशरीफ रखने वाले शख्सियत मोहम्मद आरिफ हुसैन सर हैं। आप मंसूरा में एक अरसे से दर्स और तदरीस के फराइज़ से वाबस्ता हैं। आफाक एकेडमी के अभी जितने भी सारे काम काज किए जाते हैं वो आपकी रहनुमाई में किए जाते हैं। आपके सलाह मशवरे के बाद जो है वहाँ पर ये सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी जाती हैं। एक अरसे से तलबा तालिबात की आप भी रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मालेगांव एजुकेशनल फोरम के आप भी बुनियादी अराकीन में शामिल हैं। उनके बाजू में जो है हमारे अब्दुल अजीज फलाही सर, आपने अभी उनकी किरत मुलाजा फरमाई, वो तर्जुमे के साथ पेश करते हैं। और एक तरह से जब भी मौका दस्तयाब होता है वो इखलाकियात और दीनी इस्लामियत के ताल्लुक से हमेशा, और मैं समझता हूँ कि अरबी का भी आप जो है वो 10वीं जमात तक पीरियड लिया करते हैं। अरबी से गुज़िश्ते ही दिनों आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से जो एमए किया, इस उम्र में आपने अपने तालीमी तिश्नगी को जो है वो खत्म नहीं किया, बल्कि वो तिश्नगी कायम है और मजीद कुछ हासिल करने की जुस्तजू में रहते हैं। ये एक तरह से बजाते खुद मोटिवेटर हैं। आप इनको देखकर मोटिवेट हो सकते हैं कि आप एक तालिब इल्म है, लेकिन हमें जिंदगी के हर मरहले में, हर लम्हे में कुछ न कुछ हासिल करने की जुस्तगी होनी चाहिए। जामतुल हुदा हाई स्कूल के आप एक फाल मुदर्रिस हैं, और मैं समझता हूँ सुपरवाइजर की पोस्ट पर वहाँ पर फायज अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कुल जमाती तंजीम में भी आप बहुत अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शहर के किसी भी किस्म के समाजी मसाइल हों, दीनी मसाइल हों, तालीमी मसाइल हों, इसकी मसाइल हों, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मालेगांव एजुकेशनल फोरम के आप अहम जिम्मेदार हैं, रुकन हैं। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। जाहिद यूसुफी सर ने यहाँ पर तहरीक व ताईद सदारत पेश की। आप भी जमूर हाई स्कूल के फाल मुदर्रिस हैं, और कम वो है, कम बोलते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाने वाली शख्सियत का नाम जाहिद यूसुफी सर है। उसके बाजू में जो है हमारे एजाज सिद्दीकी सर है। एजाज सिद्दीकी सर से कौन नहीं वाकिफ है? एजाज सिद्दीकी सर का नाम ऐसा है कि डॉक्टर मरहूम इलियास सिद्दीकी साहब के आप साहबजादे हैं, जमूर हाई स्कूल के फाल मुदर्रिस हैं, सुपरवाइजर हैं, और मालेगांव एजुकेशनल फोरम के बहुत अहम बुनियादी रूप में आपकी शमूलियत है। और ये बगैर जैसे फोरम अधूरा हो जाता है, किसी भी मीटिंग हो, कोई भी प्रोग्राम हो, एजाज सिद्दीकी सर की बहुत अहम जिम्मेदारियां होती हैं। आज का ये करियर का प्रोग्राम, इससे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रोग्राम, हम तमाम लोगों की जिद्दोजहद का नतीजा हुआ करता है। हम सब मिलकर बैठ जाते हैं, और सब अलग अलग फूल हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं तो एक गुलदान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और उस गुलदान को कायम करने में, उस पर पानी डालने में, खाद डालने में एजाज सिद्दीकी सर का बहुत अहम रोल होता है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ। हमारे सदर साहब के दाएं जानिब जो है आरिफ दुलाल सर, आरिफ दुलाल सर भी जो है हमारे मालेगांव एजुकेशनल फोरम का हिस्सा हैं। साइंस के एक बेहतरीन टीचर रहे हैं, सुरुखदोश हो चुके हैं, सरदार हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के आप साबिक मौलवी रहे हैं, और मालेगांव एजुकेशनल फोरम के फिलहाल आप रुकन हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारे ये डॉक्टर वसी नदीम साहब हैं। ये ऐसे तो पेशे से आप डॉक्टर हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मालेगांव एजुकेशनल फोरम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक गुलदस्ते की शक्ल है, तो इसमें हर किस्म के फूल आपको नजर आएंगे। तो उसी तरह से जो है वो डॉक्टर साहब की हैं, और उनकी बेगम है मोहतरमा बुशरा मैडम। बुशरा मैडम मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की जो है फाल मुअल्लिमा रही है। इंग्लिश सब्जेक्ट में आप महारत करती, आइए सब तमाम बच्चे आइए। मतलब गए तो बच्चे भी ऐसे बैठ जाएंगे। ये कपड़ा है, बैठते
तो मैं बुशरा मैडम के ताल्लुक से बात कर रहा था। बुशरा मैडम जो है वो मालेगांव एजुकेशनल फोरम की लेडीज विंग की समझ लीजिए सरबराह है, और लेडीज विंग में दिगर भी कुछ मालूमात हैं हमारे फोरम के, और भी दिगर अराकीन है, लेकिन चूंकि सब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में मसरूफ है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मालेगांव एजुकेशनल फोरम का हिस्सा बने हुए, और उसके जो सरबराह है मोहम्मद अलहाज डॉक्टर मंसूर हसन अयूबी साहब हैं, जो कि सिटीजन कैंपस के सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के भी चेयरमैन है, रूहे रवा है, और मालेगांव एजुकेशनल फोरम के भी सदर है। और ये एक गुलदस्ता उन्होंने सजाया है, और इसी तरह से वो यदि बोलना चाहिए कि कौम की खिदमत और तलबा तालबात की रहनुमाई का फरीज़ा जो है वो अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो हाजिर हो या ना हाजिर हो, लेकिन उनकी ईमा पर, उनके गाइडेंस पर, उनकी सरपरस्ती में ये हम लोग तमाम जिम्मेदारियां निभाया करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक जो करियर का जो प्रोग्राम है ये पूरा जो है हमने मुकम्मल किया। मैं भी एक अदना सा रुकन हूँ इस फोरम का, और जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं हम लोग सब मिलकर। तो आइए ये मुख्तसर सा तारुफ हुआ, तारुफ के बाद आज के इस प्रोग्राम की दर्ज-ओ-दायत हम समाप्त करते हैं। मैं इजाज़त सिद्दीकी सर से गुजारिश करता हूँ कि दर्ज-ओ-दायत आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम तारिक सर और अराकीन फोरम के साथ साथ सामने बैठे कुछ पा जाने के मुतमन्नी तलबा और तालिबात। आज का जो प्रोग्राम है वो इसका सिर्फ दो मकसद है। पहला मकसद ये था कि जुमेरात के दिन हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ तो बच्चों को अलग अलग बैठाल करके उनके साथ काउंसलिंग करना। अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था उससे कबल हमारे मुख्तार यूसुफ सर ने 5-7 लोगों की काउंसलिंग कर दी है, बाकी जो है प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह हम करने वाले हैं। और दूसरा इसका मकसद ये था कि करियर गाइडेंस का इनेकाद करना, और उस गाइडेंस के इनेकाद करके उसके मकसद के कुछ ये था मकसद कि आपको मुख्तलिफ कोर्सेज बता दिए जाएं। हमारे शहर के कलमिया ये है कि बहुत सी स्कूलों में सिर्फ एक मखसूस कोर्स बताया जा रहा है। हमारा गांव में लगे हुए बैनर भी बस यही ऐलान कर रहे हैं कि बस मेडिकल ही एक फील्ड है 10वीं और 12वीं के बाद, इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी मेडिकल के अलावा भी बहुत ढेर सारी फील्ड है जहाँ पे हमारे ये बच्चे जा सकते हैं। लेकिन वो ये रहा है कि उनको 9th से ही एडॉप्ट कर लिया जा रहा है और मेडिकल फील्ड में जबरदस्ती डाल दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं मेडिकल फील्ड की क्लास अटेंड करने के बावजूद अगर उसमें 200-300 एडमिशन होते हैं तो जब रिजल्ट आता है 10-15 से ज्यादा जो है कोर्सेज को पाते हैं, उसके बाद बाकी कहाँ गायब हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों को अपनी क्लास, अपना इंस्टीट्यूट वो चलाना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फोरम ने ये तय किया कि ये हमारा फर्ज है, हमारे यहाँ पे मुख्तार सर के अंडर में ये सब करियर मास्टर की बाकायदा ट्रेनिंग किए हुए हैं। मुख्तार सर तो नासिक से किए थे जाके स्पेशल कोर्स, और उनको इख्तियार है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के इनेकाद करें, लेकिन उनके अंडर में पूरी नासिक की जो टीम आई थी उन्होंने हम सब लोगों को ट्रेन किया है। तो हमने सोचा कि ये हमारा फर्ज है कि उनको मेडिकल के अलावा भी जितनी लाइन है वो सब बता दिए जाए। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए कि आपकी फील्ड कौन सी बेहतर रहेगी, और दूसरा ये कि कोर्सेज और उसका इंतखाब कैसे करें और कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, इसका इज़हार करना। इसी मकसद के तहत ये जो प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये अगराज मकासद पेश कर रहे थे मुहतरम इजाज़त, और हालांकि हमारा प्रोग्राम करने का एक बड़ा मकसद था, बड़ा यानी बोलना चाहिए कि मालेगांव शहर में तरक्की की बेशुमार तलबा है, और रहनुमाई का जो एक यानी प्रोग्राम हम लोगों का हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं। ऊपर हॉल में हम करते थे माइक वगैरह लगाकर प्रोजेक्टर के जरिए से बड़ा प्रोग्राम, लेकिन क्योंकि एक बेदारी का जो फुकदान हमारे अपने शहर में बोलो या हमारी अपनी गाँव में बोलो जो है वो हावी हो रहा है। देखिए इतना बोलने के बाद, इतना ऐलान करने के बाद एक कलील तादाद में आप तलबा तालिबात आए, लेकिन जो आए हैं वो
تعداد میں قلیل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں سے ایک طالب علم بھی ہماری رہنمائی اور گائیڈنس سے آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ مشن مکمل ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے گائیڈنس کا یہ جو پروگرام ہے اس کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی ساری باتیں ہو چکی، اب ہم سب سے پہلے یہاں پر سماعت کریں گے عارف حسین سر کو، جو آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤ ٹو چوز کریئر، آپ کس طرح سے اپنے کریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو آپ کس طرح سے مزید روشن اور کامیاب بنا سکتے ہیں، وہ اپنے لیکچر کے ذریعے سے، حالانکہ انہوں نے بہت ساری تیاری کی تھی، پی پی ٹی اور پروجیکٹر وغیرہ لگا کر بھی پریزنٹیشن دینا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ طلبہ کی بھی تعداد کم ہے اور کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں عارف سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے لیکچر سے طلبہ کو بچپن اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا عالم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔